بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے جو سیرت کا لفظ ہے وہ بولا جاتا ہے مغازی کے اوپر۔ مغازی کہتے ہیں جو غزوات ہوئے، سرایا ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اسی طرح جنگ حنین ہوئی، فتح مکہ ہوا، غزوہ تبوک ہوا، اور مختلف سرایا جتنے بھی ہیں، یعنی غزوہ موتا ہوا۔ جتنی جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے حالات کو جاننا اور ان میں افواج کو جاننا، تعداد کو جاننا، پھر اس کا نتیجہ جاننا، پھر ان میں جو معجزات ہوئے ان کو جاننا، اصل میں سب سے پہلے کام اس پر کیا محدثین نے، اور اس کا نام رکھا گیا سیرت۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ سیرت۔ پھر اس پہ مزید کام ہونا شروع ہو گیا، یعنی پھر مغازی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے سارے غزوات مدینہ منورہ کی زندگی میں ہوئے ہیں، یعنی مدنی زندگی میں۔ کس زندگی میں تھی؟ مدنی۔ اور مدنی زندگی کا ٹوٹل حصہ کتنے سال ہے؟ 10 سال ہے۔ تو اس سے پھر ٹوٹل عمر جو آقا کریم علیہ السلام کی ہے اس میں 10 مائنس کر دیں تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 53 سال۔ تو 53 سال کی تاریخ کو اولاً محدثین نے بیان نہیں کیا، صرف مدنی، اور مدنی میں بھی مغازی، یعنی باقی حالات کو بیان نہیں کیا۔ پھر محدثین نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر ساتھ ساتھ وہ مکی زندگی کو بھی لے آئے، مکی زندگی سے بعثت سے بھی پہلے کے حالات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ پھر ولادت سے لے کر بعثت تک، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا جب امام بیہقی، امام سیوطی اور مختلف مغازی پر کام کرنے والے سیرت نگاروں نے، اب یہ لفظ نکلا تھا مغازی سے، سرایا سے سیرت نکلا تھا، اب اس پر وسعت پھیلائی کہ آقا کریم علیہ السلام کی پوری زندگی، حضور جانے جانا کہ شب و روز، معمولات، خطبات، اقوال، نمازیں، اسی طرح وفود کی آمد، ان کے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفود کی جو ہے وہ اصلاح کرنا، پھر امن کی زندگی، جنگ کی زندگی، سفر، ہجرت سے ما قبل آیات کا اترنا، صحابہ کی زندگی کی مشکلات، پھر بعثت سے پہلے ٹوٹل، حتیٰ کتنی وسعت آ گئی کہ ان پھر محدثین سمیت تمام محدثین نے جس نے بھی قلم اٹھایا سیرت النبی پر، پھر صرف مغازی اور یہ کچھ نہ رہا، بلکہ 4 حصے کی آقا کریم جانے دو علیہ وسلم کی زندگی کے۔ کتنے کر دیے؟ 4۔ ایک ہے ولادت سے پہلے، ولادت سے پہلے کے حالات، یعنی آباء و اجداد کے حالات، شجرہ نسب، حضور کے والدین کا ذکر، حتیٰ کہ محدثین نے پھر وہاں سے شروع کیا جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ یہ ہے ولادت کا، یہ ہے ولادت سے پہلے کے جو حالات ہیں، یہ سیرت النبی کا ایک حصہ ہے۔ یہ کس کا حصہ ہے؟ سیرت النبی کا۔ دوسرا ہے ولادت سے لے کر بعثت تک، اعلان نبوت تک، یعنی آپ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، اور پھر بعثت سے لے کر وصال تک، اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی، مدنی زندگی، یہی وہ زندگی ہے جہاں آپ کے اقوال، نصائح اور آپ کا جو پورا زندگی کا طریقہ ہے آپ نے لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا، تبلیغ بھی کی، اسی کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے، یعنی عملی پریکٹیکل کر کے دکھانا۔ پھر چوتھا حصہ محدثین نے کیا وصال سے لے کر دخول جنت، یعنی برزخ میں، قبر میں حضور کے حالات کیا ہیں، میدان محشر میں حضور کے حالات کیا ہوں گے، پل صراط پہ کیا ہوں گے، میزان پہ کیا ہوں گے، قیامت میں کیا ہوں گے، جنت میں کیا ہوں گے۔ اب یہ پوری سیرت، جب ہم اب سیرت النبی کہیں گے تو اس سے مراد ہوگا ولادت سے بھی پہلے تخلیق کائنات کے آغاز سے لے کر دخول جنت تک مصطفیٰ کے سارے حالات۔ اب سمجھ آ گئی؟ شروع میں محدثین نے کام کون سا کیا تھا جی؟ مغازی سے، یعنی جنگوں سے انہوں نے شروع کیا، کرتے کرتے پھر مکی، بعثت اور ولادت، یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے سیرت کا ابتدائی معنی یہ ہوتا ہے جنگوں میں حالات، طریقہ، چلنے کا راستہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اسی کو وسیع کرتے کرتے پھر محدثین نے یہاں تک اس کو وسعت دی، اور آج قیامت تک جتنی بھی سیرت لکھی جائے گی یہ 4 حصے ضرور بیان ہوں گے، تب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کن کا جی؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی رائٹر حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات لکھے گا تو ان کی پیدائش سے پہلے جو ان کے دادا جان حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی گئی، اس خوشخبری سے شروع کرے گا۔ ایک حصہ ہو گیا۔ دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت سے لے کر
वफात तक। ये भी क्या है, ये दूसरा हिस्सा है जो अल्लाह ने डिस्कस किया, बयान किया कुरान के अंदर, ये भी उनकी सीरत का हिस्सा है। तीसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब उनकी वफात हो गई लेकिन इतने सालों बाद नबी रहमत शफी उम्मत जाने दो आलम सल्लम पर कुरान उतार के याकूब का जिक्र करना, यह भी याकूब की सीरत का हिस्सा है। किया है कि नहीं किया? हजरत यूसुफ को डिस्कस किया, हजरत इब्राहिम को, हजरत इस्माइल को, अंबिया को बयान किया। अब जब भी किसी नबी के हालात लिखे जाएंगे, उनके माँ बाद जितनी आयात और जितनी किताबों में उनका तज़किरा चल रहा है वो भी सारी बयान होंगी, वो सारा कुछ तज़किरा याकूब कहलाएगा। अब हम सीरत को यूं समझ लें कि सीरत जो इब्तदाई माना सैयर से तरीके से निकला और जंगों के हालात से, अब इसको हम बदल के यूं कर लेते हैं कि सीरतुन नबीस की बजाय हम इसका नाम रखेंगे तज़किरतुन, क्या नाम रख दिया? तज़किरा। अब विलादत से पहले का जो तज़किरा वो भी आ जाएगा, विलादत से लेकर वसाल तक का भी आ जाएगा, विसाल के बाद दुखूल जन्नत तक का भी आ जाएगा। तज़किरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, विलादत से भी पहले कब कब हुआ, कहां कहां हुआ और किस शान से हुआ, क्या अंदाज था। सबसे पहले हमने करना है तख्लीके कायनात। यहां से कायनात की तख्लीक कैसे हुई, बेशुमार मुहद्दिसीन ने इस हदीस को लिखा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कायनात को बनाया सबसे पहले किस शय को बनाया, किस चीज को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया? फरमाया, या जाबिरु इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यक मिन नूरिही, अल्लाह ताला ने कायनात बनाने से पहले तेरे नबी के नूर को तख्लीक फरमाया था। यहां से अब नूर से कायनात की क्या हो रही है? तख्लीक। फरमाया, ना उस वक्त शम्स था, न कमर, न कौकब, न आसमान, न जमीन, न जिन, न फरिश्ता, न इंसान, न जन्नत, न दोज़ख, कुछ भी नहीं था। खुदा था, और खुदा का बनाया हुआ वो नूर नबी था, जो जब तक अल्लाह ने चाहा वो नूर नबी जो था वो सैर करता रहा। आगे सुनिए, फिर अल्लाह ने उस नूर के हिस्से किए, फिर अर्श बनाया, फिर मुख्तलिफ चीजें बनाई, फिर अल्लाह ने हिस्से किए, करता गया अल्लाह हिस्से और कायनात को बनाता गया। कायनात की इब्तिदा नूर मुस्तफा से हुई है। अच्छा, एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस, यह इसको कहते हैं हदीसे जाबिर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसको कहते हैं हदीसे इरबाज बिन सारिया। इरबाज बिन सारिया, यह हदीसे जाबिर है। पहली जो हदीस पढ़ी, इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यक मिन नूरिही, यह दूसरी हदीस है। फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबिन खातमन नबिय्यीना, मक्तूबन खातमन नबिय्यीना व इन्ना आदम लमुनजदिलु फी तीनतिही। फरमाया, मैं उस वक्त नबी, आखिरी नबी लिख दिया गया था जब अभी आदम मिट्टी और गारे के दरमियान में थे। मैं क्या लिखा गया हूं? चले नारों वाला टाइम अभी दे दे, नारों वाला टाइम दे दे। क्या लिखा गया हूं? खातमन नबिय्य, हुजूर की खत्म नबूवत का ऐलान पहले से हो चुका है, और इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी किया है। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 82 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ऐ अंबिया की वो, जब अल्लाह ताला ने सारे नबियों को इकट्ठा किया, फरमाया वो वक्त याद करो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों से पुख्ता वादा लिया कि जब मैं तुम्हें नबूवत दे दूं, हिकमत भी दे दूं, किताबें दे दूं, तो तुम क्या करना? सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आ जाए आखिरी रसूल, तो तुमने क्या करना है? इस आखिरी नबी पर ईमान भी लाना है और इनकी नुसरत भी करनी है, मदद भी करनी है। तो ये क्या है? तज़किरतुन नबी, आलमे अरवा में तज़किरतुन नबी, आलमे अरवा में तज़किरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तमाम अंबिया से पुख्ता वादा ले रहा है कि तुमने ईमान भी लाना है और नुसरत भी करनी है। इकरार करते हो? सब ने कहा अल्लाह हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम भी गवाह हो जाओ, मैं भी गवाह हो जाओ। ये कुरान में जिक्र आया। अच्छा, तो ये खातमुन नबिय्यीन का ऐलान उसी वक्त हो चुका था। तीसरी हदीस, इसको कहते हैं हदीसे अबू हुरैरा। हदीसे अबू हुरैरा, इस हदीस में यह है कि आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुवा, हजूर आप कब नबी बनाए गए? आप कब नबी बनाए गए? इसका मतलब यह है कि सहाबा समझ रहे थे ऐलान 40 साल की उम्र में हुआ है, नबूवत कहीं पहले से मिली हुई है। अच्छा, बड़ी गौर से बात सुनने वाली, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस वक्त नबी था, वह आदमो बैन रूह वाले जसद, आदम रूह और जिस्म के दरमियानी मरहले में थे।
किस दरमियानी मरले में कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, रूह और जिस्म। एक हदीस पाक में अब पानी और मट्टी के दरमियान थे कि जब मैं क्या नबी था। ये तवज्जो कीजिए। अब ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है जी? नबी। और क्या चीज मिली है इनको? नबूवत। तवज्जो, नबूवत वसफ है। नबूवत क्या है? वसफ है। और नबी मौसूफ है। जिसको वसफ मिला वो क्या है? मौसूफ है। और कायदा यह है वसफ बाद में होता है, मौसूफ पहले होता है। कायदा यह है कि वसफ बाद, मैं बोल रहा हूं, ये बोलने का वसफ है, ये मुझे पहले मिला है या मैं पहले पहनाया गया हूं? पहले मैं जब पैदा किया, बोलने का वसफ तो मुझे बाद में मिला। तो वजूद मेरा पहले है, नुत्क़े वसफ बाद में है। वसफ़े नबूवत का मिलना आदम के जमाने में इस बात की दलील है वसफ बाद में होता है, मौसूफ पहले होता है। सरकार का आगाज यहां से नहीं हुआ बल्कि आलम अरवा और कदीम जमाने से हुआ है। कितनी दलीलें हो गई भाई? 3 दलीलें हो गई। चौथी दलील इसको कहते हैं बरवायत शाबी। ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, ताबी बुजुर्ग गुजरे, ये रवायत करते हैं कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह मता जुइलता नबियन, आपको नबी कब बनाया गया? आपको नबी कब बनाया गया? काला व आदम बैन रूह वाले जसद, फरमाया जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। तवज्जो, अल्लाह ताला ने सब नबियों से क्या लिया? वादा लिया। यहां बात तवज्जो करना, सब नबियों से वादा लिया। और इस वादे का एक जिक्र सूरह अहज़ाब में भी मिलता है, आयत नंबर 7। वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़ नबिय्यिना, कि हमने नबियों से वादा लिया, पुख्ता वादा लिया, वह मिनका, वह तुझसे भी पुख्ता वादा लिया महबूब। तवज्जो, तरतीब देखिए, तुझसे लिया महबूब, वह नूहन व मिन नूहिन, नूह से लिया, वह इब्राहिम से लिया, वह मूसा से लिया, वह ईसा इब्न मरियम, और किससे लिया? ईसा इब्न मरियम से। अब तवज्जो, हजरत नूह से, इब्राहिम से, मूसा से, ईसा से, जबकि ये नबी सारे पहले गुजर गए हैं, लेकिन अल्लाह ने तरतीब में इन नबियों का जिक्र बाद में किया, पहले अपने महबूब का जिक्र किया। तो अब ये जो पहले हुजूर का जिक्र करना, ये किस बात की दलील है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, कौन तो अव्वलन नबिय्यिन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बास, नबुव्वत में, नबियों में, बनाए जाने में, तख्लीक में मैं सारे नबियों से पहला हूं, भेजे जाने के एतबार से मैं सबसे आखिरी हूं। पता चल गया कि उस वक्त भी हुजूर जाने जाना का एक वजूद था, और वो वजूद क्या था? वो नूरी वजूद ही था। अच्छा, पूछा गया, अब ये वादा सूरह अहज़ाब वाला याद करना, खुद से वादा लिया, नूह से वादा लिया, मूसा इब्राहिम से वादा लिया, मूसा से लिया, ईसा से लिया। तो हुजूर ने फरमाया, व आदम बैन रूह वल जसद हीना उखिज़ मिनल मीसाक, अभी आदम रूह और जिस्म के दरमियान से जब अल्लाह ने मुझसे पहले वादा ले लिया था। तो वादा ले लिया था क्या मतलब है? जिससे लिया जा रहा वो है ही कोई नहीं, बोले ना। तो यह तज़किरा मुस्तफ़ा कहां से शुरू हो रहा है? 5वीं रवायत है रवायत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कौन रवायत कर रहे हैं? हजरत इमाम अपने आबा से, यानी हजरत इमाम हुसैन से, अपने अब्बा जी से, और इमाम हुसैन अपने अब्बा जी मौला अली से, और मौला अली बयान कर रहे हैं ताजदार कायनात से। इसको कहते हैं सुनहरी चमकती हुई सनद, अहले बैत की है। तो ताजदार कायनात जाने दो आलम ने फरमाया, कुन्तु नूरन बैन यदै रब्बी क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम बि 14 अल्फ़ आम, मैं अल्लाह ताला के यहाँ नूर था आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से 1400 साल पहले। कितने साल पहले? अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के यहाँ एक दिन जो होता है उसकी मसाफत घड़ी है, 24 घंटे नहीं होते। ये हमारे 24 घंटे है ना, 24 घंटे में क्या हो गया जी? दिन है, रात है जी, एक दिन है, यौम है। अल्लाह के यहाँ जो एक दिन होता है उसकी मिकदार आपके 1000 साल हैं। अब 1400 ज़रबे 1000 लगाए, कितने बन गए? कितने लाख साल पहले? 14। ये है कम तादाद, मुहद्दिसीन कहते हैं ये भी कम तादाद बताई है हुजूर जाने जाना ने, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इससे भी पहले हो चुकी थी। यह तादाद हमें समझाने के लिए बता दें। अच्छा, आगे चलिए, बरवायत इमाम बाकिर, हजरत इमाम बाकिर की रवायत।
इमाम बाकिर के पास एक बंदा आया, उसने कहा कि आखिर क्या वजह है कि तमाम नबियों से ताजदार कायनात जाने दो अलैहि वसल्लम की हम तकदीम करते हैं, यानी बढ़ाते हैं, अफजल जानते हैं, उसकी क्या वजह है? आपने इरशाद फरमाया उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से सारी औलाद आदम को निकाल के कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? सब बर्बाद, जिनमें नबी वली सारे मोमिन काफिर मौजूद थे, कोई नहीं बोला। जलाले रब्बी के आगे जब जलाले रब्बी हुआ, बताओ क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? सबसे पहले काना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मन काला बला, सबसे पहले ताजदार कायनात ने कहा था हाँ। तो जब हुजूर ने कहा फिर नबी बोले, फिर सारे बोले। तो अल्लाह के रब होने का इकरार सबसे पहले किसने किया? हुजूर जाने जाना नहीं, वो भी तज़किराए नबी के अंदर शामिल हो गया। सबसे पहले बला का लफ्ज बोला किसने? ताजदारे कायनात। कितनी रिवायतें हो गई जी? 6। 7वीं में पढ़ चुका, कुन्तु अव्वलन नबिय्यिन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बास। जनाब अबू हुरैरा से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया मैं तख्लीक के एतबार से, यानी बनाने के एतबार से नबियों में सबसे पहला हूं, और भेजे जाने के एतबार से मैं सारे नबियों के आखिर में आया। तो सरकार अव्वल भी हैं और सरकार आखिर भी हैं। आप नामों में देखते हैं कि हुजूर अव्वल भी हैं और आखिर भी। ये एक चैप्टर है। अब मैंने ये कितनी रवायतें हो गई जी? ये 7। 7वीं ये हो गई। 7 रवायतें पढ़ी हैं। ये सातों की सातों नशरुत्तीब अल्लामा अशरफ अली थानवी की किताब है, ये उससे मैंने पढ़ी है सारे। अब हम पर फतवा लगाने से पहले उन पर लगाइए। तज़किरातुन नबी को शुरू ही इस बाब से किया है, नूरे मोहम्मदी का बयान। ठीक हो गया? ये हमारा एक चैप्टर मुकम्मल हुआ है। फसले 2 शुरू हो रही है। अब ये तज़किरातुल मुस्तफा है, लेकिन विलादत से पहले पहले आके करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये रवायत है हजरत फारूक आजम से, हजरत फारूक आजम से। अच्छा, जितनी मैं रवायात पढ़ूंगा अगर किसी और किताब से होगी तो मैं उसका हवाला दूंगा, वरना एक ही किताब है, अक्सर चलेगी, नशरुत्तीब फी जिक्र नबी अल हबीब अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब। ठीक है, बाकी किसी और किताब का रेफरेंस होगा तो मैं दे दूंगा। अब बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि 12 सदियों तक सारे इकट्ठे थे। ये जो अब थोड़ा दौरा पड़ा है ना, ये इसका सबब खुद ही तलाश करें क्या दौरा पड़ गया। अच्छा, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला से रवायत है, और अल हाकिम ने भी इसको लिखा, इमाम बहकी ने भी इसको लिखा, इमाम तबरानी ने भी इसको लिखा, बेशुमार मुहद्दिसीन ने लिखा। और इसी रवायत को अल्लामा नवाब वहीदुज़्ज़मान साहब, ये अहले हदीस आलिम गुजरे हैं, उनकी किताब है हदियतुल महदी। हदियतुल महदी, इस किताब का नाम है महदी को हदिया करना। किसको हदिया करना? महदी। इमाम महदी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो इन्होंने अंग्रेज दौर में यह किताब लिखी थी, जब चारों तरफ पूरी दुनिया में अंग्रेज का राज हो गया, जहां से सूरज चढ़ता अंग्रेज का राज, जहां डूबता अंग्रेज का राज, हर तरफ। तो मायूस कुन हालात में उन्होंने ये किताब लिखी कि मैं ये किताब लिखकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस शहजादे की खिदमत में हदिया कर रहा हूं, ताकि मेरे अकीदे महफूज हो जाएं कि मेरे ये अकीदे हैं। उसके अंदर इसी हदीस को लिखा जो अब मैं बयान करने वाला हूं, इसी हदीस को। वो क्या कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में रखा और फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जहां मर्जी रहो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब ना जाना। ये कुरान में जिक्र आता है। लेकिन वो उस शजरे ममनूआ के पास चले गए। बिलाखिर वो दुनिया में तशरीफ ले आए। जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो कई सालों तक वो तौबा करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तौबा करते रहे। आखिर ये जो रवायत है इन मुहद्दिसीन ने और जिक्र की है, नशरुत्तीब में भी है, वो ये है कि फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, लम्मा अज़नबा आदम ज़ंबल्लज़ी अज़नबहु व रफ़अतु रासी, उन्होंने सर उठाया अल्लाह रब्बुल आलमीन का। सुम्मा काला, फिर उन्होंने ये कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, अल्लाह गफ़रत ली, अल्लाह मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मन मोहम्मद, कौन है ये मोहम्मद? अब अल्लाह को नहीं पता कौन है मोहम्मद? बोलिए भाई, अल्लाह तो हर शय को जानता है। इसका मतलब है कि खुद खुदा चाहता है कि इतने सालों बाद जिक्र लबे आदम पे आया है, तो कुछ जिक्र ये छेड़े तो कुछ जिक्र मैं भी छेड़ूं। फरमाया कौन है? तो कहा, या रब्बल आलमीन तबारक अस्मुका लम्मा खलक़तनी व रफ़अतु रासी इला अर्शिका फ़इज़ा हुवा मक्तूबुन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने तेरी जात बुलंदो बरतर है
जब तूने मुझे तख्लीक किया तो मैंने अर्श की तरफ देखा तो मैंने ये कलमा लिखा हुआ पाया, मैं जान गया जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ जोड़ के रखा है ये पूरी कायनात में तुझे सबसे ज्यादा महबूब तरीन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया आदम सुन, ये नबियों में आखिरी नबी होंगे, इनकी उम्मतों में आखिरी होगी, अगर ये ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। ये हदीस। अब तवज्जो कीजिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कहां हुई है भाई? कहां हुई है? जमीन में। और क्या कह रहे हैं, जब तूने मुझे पैदा किया तो मैंने अर्श की तरफ देखा। और अर्श का फासला सूरतुल मुआरिज आयत नंबर 3 में अल्लाह इरशाद फरमाता है 50,000 साल। ठीक हो गया, अब तय जमानी वाले सारे मसले हल हो जाएंगे। अब मैं बस एक नुक्ता बताने लगा हूं। आदम अलैहिस्सलाम बने, रूह आई, आंख खोली, सीधी अर्श तक गई, जो 50,000 साल दूरी का जमाना है। ये अभी बन रहे हैं और निगाह अर्श पे पड़ रही है। तो जिनके मुक्तदियों का आलम यह है, मुस्तफा जान रहमत की निगाह का आलम क्या होगा? और हुजूर जाने जाना की निगाह का आलम यह है कि बुखारी शरीफ के अंदर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई नमाज, नमाज के बाद आखिर में सब सलाम फेरा तो हुजूर ने आखिरी सबसे बंदे को खड़ा किया, पर मैं खड़ा हो जाऊं। हुजूर कहां है? मुसल्ला इमामत पे। साहबी आखिरी सब में हुजूर ने सलाम फेर के कहा तुम नमाज में क्या कर रहे थे? तुम नमाज में क्या कर रहे थे? और आगे क्या फरमाया? हल तरौना किबलत हा हुना फवल्लाहि मा यखफा अलैया रकूअकुम वला खुशूअकुम व इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़ारी। फरमाया तुम समझते हो कि मेरा चेहरा सिर्फ किबले की तरफ ही रहता है? खुदा की कसम, मैं जिस तरह आगे देखता हूं इस तरह अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूं। ना तुम्हारे रकू मुझसे पोशीदा है, ना तुम्हारी दिल की बातें मुझसे पोशीदा है। तो सरकार आगे भी और पीछे भी, बल्कि मवाहिबुल दुनिया और मुख्तलिफ किताबों में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रात के वक्त भी उतना ही देखते थे जितना दिन के वक्त देखते थे। बुखारी शरीफ से एक इस्तदलाल मैं कर देता हूं, हुजूर जितना जागते में देखते थे इतना सोने की आलम में भी देखते थे। कैसे? जाने जाना ने फजर की नमाज पढ़ाई, ये किताबुल इल्म में हदीस है। हुजूर ने सलाम फेरा, फरमाया पता है आज रात क्या हुआ? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया हमारी आंख लग गई, दो फरिश्ते आ गए, एक पांव की तरफ खड़ा हो गया, एक सर की तरफ खड़ा हो गया, वो आपस में बातें करने लगे। वो सारी बातें रिपोर्ट है बुखारी में। फरमाया उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, पूछने वाले ने ये पूछा, फिर वो दोनों चले गए। जब वो चले गए तो अब सरकार क्या आएंगी? सोए हुए हैं, देख भी रहे हैं कि कौन आ रहे हैं, बातें क्या चल रही हैं वो सुन भी रहे हैं। वो दिले अकदस की आंख देख रही थी आका करीम अलैहिस्सलाम। तो ये एक अलग चैप्टर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, अब देखें जमाना आदम अलैहिस्सलाम है और तज़किरा मुस्तफा चल रहा है। दूसरी रवायत हजरत इरबाज बिन सारिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें अपनी खबर ना बताऊं? खुद हुजूर अपनी खबर बता रहे हैं। फरमाया मैं हजरत इब्राहिम की दुआ हूं, मैं हजरत इब्राहिम की दुआ हूं। और वो सूरह बकरा पहले सिपारे में आई है कि जब उन्होंने काबा बनाया तो काबा बनाने के बाद उन्होंने दुआ क्या की? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तो दुआ ये की है रब्बुल आलमीन काबा मैंने बना दिया, अब ऐसा कर इस्माइल की औलाद में से जो उम्मत मुसलमा होगी उसके अंदर अपना शान वाला आखिरी रसूल भी भेज दे, जो किताब भी पढ़ाए, हिकमत भी पढ़ाए, सुन्नत भी सिखाए और कुरान की तालीम भी दे और तस्कीया भी करे, सीने भी साफ कर दे। तो फरमाया नबी पाक ने आना दावा तो इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ, मैं हज़रत इब्राहिम की दुआ। एक अब बात समझ आ रही। दूसरा फरमाया मैं बिशारत ईसा हूं, मैं क्या हूं? बिशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस नबी की बिशारत दी थी वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, सूरह सफ आयत नंबर 6। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब जाने लगे, रफ़े आसमानी होने लगा और बाहर लोग आपको कैद करने की तैयारियां कर रहे थे, आपने आखिरी खुतबा दिया तो फरमाया मैं ईसा तुम्हें अपने बाद एक सच्चे नबी की, रसूल की आमद की बशारत देता हूं और उनका नामे नामी इसमें ग्रामी क्या होगा? अहमद होगा। फरमाया मैं वो हूं, मैं वही हूं। ये कितनी बातें हो गई भाई? दो। तीसरा फरमाया मैं अपनी वालिदा का ख्वाब हूं, जो उन्होंने देखा था हालत हमल के अंदर। क्या ख्वाब देखा? फरमाया जो अक्सर नबियों की माएं देखा करती हैं, उन्होंने देखा कि बुसरा के महल्लात और शाम के महल्लात चमक उठे। ये हदीस हो गई। कितनी हदीसें हो गई भाई? दो। हदीस फारूक आजम की, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा। तीसरी हदीस
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ آقا کریم جان دو علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ بعض قریشی جو تھے ان کو اچھا نہیں جانتے تھے، یہ روایت ہے پوری، اور جب وہ آپس میں بیٹھتے تو خوب ہنستے کھیلتے، جب جیسی حضرت عباس آتے وہ چپ کر جاتے اور منہ بٹاتے۔ تو حضرت عباس کو یہ بات بڑی بری لگی، آگے اچھا کچھ قریشی جو نئے نئے فتح مکہ کے بعد ہوئے تھے تلوار کے زور سے، انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی، کیا ہوا جو بنو ہاشم میں ایک پودا نکل آیا ہے، مراد رسول کائنات، باقی تو صرف صحرا ہی صحرا ہے، یعنی بنو ہاشم کی کوئی خوبی نہیں ہے، باقی تو صحرا ہی صحرا، ایک نیا پودا نکل آیا، بس اس پودے کی وجہ سے یہ وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کی۔ تو حضرت عباس نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ میں جب جاتا ہوں تو وہ یہ کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے سنا تو سبھی کو اکٹھا کیا اور یہاں ایک خطبہ دیا، فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں کون ہوں؟ محمد بن عبداللہ بن یہ کہہ کے فرمایا جب اللہ نے کائنات کو بنایا، کائنات کے دو حصے کیے، کتنے حصے؟ دو حصوں میں مجھے بہتر حصے میں رکھا، بہتر میں، جب اس بہتر کے بھی اللہ نے دو حصے کیے مجھے پھر بہتر حصے میں رکھا، جب اس بہتر حصے کے گھر بنائے مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ توجہ کیجیے گا، کائنات بنی، کائنات کا بہتر حصہ انسان، مجھے کیا بنایا؟ اور انسانوں کے جب آگے دو گروپ بنے، عربی اور عجمی، مجھے کہاں رکھا؟ عربیوں میں رکھا۔ جب عربیوں کے آگے قبیلے بنے مجھے قبیلہ قریش میں رکھا، جب قبیلہ قریش کی آگے شاخیں بنی مجھے بہترین گھر میں رکھا، اور فرمایا اس بہترین گھر کے اندر میرا مبعوث ہوا ہے، میں پیدا ہوا ہوں، میرے گھر سے بہتر گھر بھی کوئی نہیں، میرے گھرانے سے بہتر گھرانہ بھی کوئی نہیں۔ یہ ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے پاک۔ تو حضور نے اپنا ذکر کہاں سے شروع کیا؟ کائنات سے، اور اپنے آبا و اجداد سے شروع کیا، ایک حدیث۔ دوسری حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الکریمۃ الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا، میرے باپ بھی سارے پاکیزہ ہیں اور میری مائیں بھی ساری پاکیزہ۔ تذکرہ مصطفیٰ ہے لیکن ولادت سے پہلے چار حدیثیں ہو گئی۔ پانچویں حدیث ہے حضرت سیدنا جبریل امین سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل امین مجھے یہ بتا تو نے مشرق و مغرب سارے کھنگال مارے، بڑے بڑے تو نے حسین و جمیل بھی اور مرتبے والے بھی دیکھے، ہمارے جیسا بھی کوئی دیکھا؟ اور یہ طبرانی وغیرہ کی روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا رجلا افضل من محمد، میں نے مشرق و مغرب کھنگال مارے ہیں لیکن آپ سے بڑھ کے میں نے کسی بندے کو نہیں پایا، اور آپ کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ بھی نہیں پایا۔ حضور کا بھی ذکر ہے اور حضور کے گھرانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبریل امین۔ نمبر 6 بخاری شریف کی حدیث پاک، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، فرمایا آدم علیہ السلام کے زمانہ سے اپنے زمانے تک میں بہترین پشتوں میں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، میرے سارے آبا جو تھے اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ہے مومن اور ایک ہے کافر، بہتر کون ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ مومن کیا ہے؟ بہتر ہے، اور حضور کیا کہتے ہیں؟ میرے سارے آبا بہتر ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضور کے سارے آبا کیا تھے؟ مومن۔ یہ کلیئر ہوگی بات؟ چھٹی 7ویں آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من والد اسماعیل، اولاد ابراہیم میں سے اللہ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا، اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من والد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانۃ واصطفیٰ قریشا من بنی ہاشم واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ او کما قال۔ کتنی حدیثیں ہو گئے بھائی؟ 7 کی 7 حدیثیں، ان میں ذکر ہے حضور کے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا۔ اب آپ کے سامنے میں اہل حدیث عالم ہیں، بہت بڑے عالم گزرے، منصور پوری، سید سلیمان منصور پوری، انہوں نے کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین، اور کتاب واقعی پڑھنے کے لائق ہے۔ 3 جلدیں ہیں اس کی۔ کتنی جلدیں ہیں؟
3 اس میں ماں قبل کے بھی واقعات ہیں حضور کی ولادت سے پہلے بھی، پھر ولادت سے لے کر وصال تک، پھر بعد میں بھی جو برزخی اور حضور کے امت کے وہ بھی سارے حالات ہیں، یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ اس کے اندر دوسری جلد میں حضور کا شجرہ لکھا ہوا